الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. غضب ہے یہ فلموں کی ایک بلا بھی ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی. غضب ہے یہ فلموں کی ایک بلا بھی ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی ہر ایک مبتلا ہے برا بھی بھلا بھی. تیرا اے نئی روشنی منہ کالا کوئی اس کے آخر اثر سے بچا بھی کہ چھوٹا نہ مجذوب سا با خدا بھی. کوئی اس کے آخر اثر سے بچا بھی کہ چھوٹا نہ مجذوب سا با خدا بھی. تیرا اے نئی روشنی منہ کالا دلوں میں اندھیرا ہے باہر اجالا. جلسہ آج کا آپ شروع ہو رہا ہے. آغاز میں بڑا خوبصورت جلسہ ہے. بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں. آغاز انشاءاللہ اچھا ہوگا تو انجام بھی کل کا اچھا ہوگا. آپ لوگ جلسہ مکمل سنیں گے, دھیان سے سنیں گے اور عمل کے جذبے سے سنیں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. فرصت ملے گی تو توبہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے یہاں پھنسے, ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوال ہے, 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. فلم دیکھنے کا کیا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے. پہلا, دوسرا, تیسرا کیا ہے؟ عشق بازی, فلم بازی, عشق بازی, عشق بازی کا, پیار و محبت کا, لڑکی بازی کا کیا نقصان ہے؟ 3 نقصان ہے. پہلا اور دوسرا, تیسرا کیا ہے؟ شراب پینے کا 5 نقصان ہے. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں کیا ہے؟ مکمل سوال آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ دھیان سے سنیں گے, عمل بھی کریں گے اور یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جائیں گے. اس کو اپنے گھر میں تقسیم بھی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آج گناہ کریں گے, کل توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑھاپے میں توبہ کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. 3 سوال ہیں ہمارے. 3 سوال سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے. فلم دیکھنے کا 3 نقصان ہے. پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی جب فلم دیکھتا ہے, بڑی بڑی گاڑی دیکھتا ہے, بڑا بڑا بنگلہ دیکھتا ہے تو اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ میں غریب ہوں, یہ لوگ امیر ہیں, سب کچھ اللہ نے انہی کو دیا. اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے. پہلا نقصان. دوسرا نقصان فلم دیکھنے کا کیا ہے؟ آدمی جو دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے. چوری ڈکیتی دیکھتا ہے وہی نقل کرتا ہے. دوسرا نقصان. تیسرا نقصان فلم دیکھنے کا یہ ہے کہ آدمی کے دل سے گناہ کا احساس نکل جاتا ہے. عشق بازی, باپ کی پسند سے شادی نہیں کر رہے, اور لڑکی بازی موبائل میں, فیس بک میں اور واٹس ایپ میں, اس کا کیا نقصان ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. پہلا نقصان,
लड़की बाजी का पहला नुकसान, आदमी का दिल तारीक और सिया हो जाता है। दूसरा नुकसान, दीन दुनिया दोनों से आदमी बर्बाद हो जाता है। तीसरा नुकसान, इसी पर अगर मौत आ गई तो ठिकाना जहन्नम होता है। ये बंगाल है, बंगाल में शराब हराम नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आप मुसलमान हैं, आपके लिए एक एक कतरा हराम है। शराब पीने का 5 नुकसान है। पहला नुकसान ये है, जो जवान शराब पी रहे हैं 80% खुदकुशी कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। जो जवान दारू पीता है 74% जेल जाते हैं। जो जवान दारू पी रहा है वो रात में लाखपति होता है, सुबह को खाकपति हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, कंगाल हो जाता है। दारू पीने वाले जवान का हाल क्या है कि वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। दारू पीने वाले जवान का नुकसान क्या है, जवानी में मौत आ जाती है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए। जो पीते हैं वो भी तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रक्स गाहों में इस अंदाज से पायल झनकी, रक्स गाहों में इस अंदाज से पायल झनकी, उसकी आवाज में आवाज आज़ां डूब गई, उसकी आवाज में आवाज आज़ां डूब गई। इस कदर शोर मचाती रही इशरत गाहें, जिसमें मज़लूम की फरियाद दो फग़ां डूब गई। तरसता यकसा मगर वो तो मसीही रहे, तुझ पे मज़हब के एवज़ शैतान का काबू हो गया। मैं उन्होंने पी एक ही बोतल से पी, होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी, होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तो उल्लू हो गया, लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तो उल्लू हो गया। खाता खुल रहा है, बड़ा प्यारा जलसा है, आधा से ज्यादा पिंडाल भरा हुआ है। अल्लाह आपके हौसले की कदर फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। कहाँ आदमी फिसलता है तो ईमान से निकल जाता है। हम कहाँ मुसलमान कच्चे पक्के रहते हैं, पक्के मुसलमान नहीं रहते। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मजाक में कोई ऐसा जुमला हमारी जबान से निकलता है कि निकलते ही हम मुसलमान नहीं रहते, इस्लाम से खारिज रहते। पहला जुमला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। मांगना है तो बड़े पीर से मांगो, अल्लाह से क्या मांगते हो? अल्लाह का तो काम रह गया इधर से लेना उधर देना। बोलते ही आदमी मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह को भूखा मार करके रोजे में क्या मिलता? रोजा वो रखे जिसके घर में दाना ना हो, हमसे भूखा मारा नहीं जाता। इस जुमला के बोलते ही आदमी ईमान से निकल जाता। नमाज पढ़ने में, उठक बैठक करने में क्या मिलता है? कौन जाकर के उठक बैठक करे नमाज में? इस जुमले के बोलते ही आदमी इस्लाम से निकल जाता। आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन कबूल नहीं, क्योंकि आप गुमराह हैं। गुमराह आदमी कहां कहां होता, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बोलता है कि पता नहीं किस मनहूस की शक्ल देख लिया था, मेरा काम खराब हो गया। आप कोई भी इबादत यहां से करेंगे, कोई इबादत आपकी कबूल नहीं। आप कहते हैं उल्लू मनहूस है, उसने घर पे साया किया, ये नुकसान हुआ, घर वीरान हो गया, औलाद का नुकसान हुआ। आपने मुसलमान होकर के अगर ऐसा ख्याल किया तो आपकी कोई इबादत कबूल नहीं। तीसरी बात याद रखिए, आज बारिश हो रही है फलां सितारे की वजह से, आज तूफान आया फलां सितारे की वजह से, आपने मुसलमान होकर के यह ख्याल किया, आप मुसलमान रहे, लेकिन आपका अमल कोई कबूल नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं, खास तौर पर औरतें कहती हैं कि गर्म पानी जमीन पर मत डालो वरना जमीन बदला लेगी। अगर मुसलमान औरत कहती है तो मुसलमान तो है, ईमान तो सलामत है, लेकिन अमल कबूल नहीं। नमक को जमीन पर मत डालो
वरना क़यामत में पलकों पर उठाना पड़ेगा। मुसलमान होकर के अगर ऐसा ख्याल किया, मुसलमान ईमान तो सलामत रहेगा लेकिन अमल कबूल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते हैं। बेटा बीमार है, लोग कहते हैं कि फला मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं नाच का जलसा करूंगा। दूसरी मिन्नत क्या है, अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं मस्जिद में जाकर के सलाम करूंगी। औरत कहती है, ओ पीर साहब मेरा फला काम हो गया तो मैं आपके नाम पर चादर चढ़ाऊंगा। पीर साहब मेरा फला काम हो गया आपके नाम पर बकरा करूंगा। अल्लाह के लिए मिन्नत मानी जाती है, किसी और के लिए नहीं। मिन्नत माननी है अल्लाह के लिए माननी है, मिन्नत माननी है इबादत के लिए माननी है, मिन्नत माननी है उस इबादत की माननी है जो फर्ज और वाजिब है। वरना आप मुसलमान तो हैं लेकिन गुमराह मुसलमान है। आप इबादत तो करते हैं, इबादत कबूल नहीं। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। रजब का महीना चल रहा, 22 रजब जब आता है तो कहता है कि 22 रजब का कुंडा है। कुंडे का मतलब क्या हुआ? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई है। गलत है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की विलादत रमजान में हुई है, वफात शव्वाल में हुई है, ये गलत है। 22 रबीउल अव्वल का 22 रजब का कुंडा इमाम जाफर सादिक का नहीं है। रास की बात बता रहा हूँ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु 12 रबीउल अव्वल की वफात, 12 रजब की वफात हुई है। अगर आज जश्न मनाया जा रहा है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मौत पर जश्न मनाया जा रहा है। रजब का महीना जब आता है तो आप सुनते होंगे एक जुमला, मरियम चांद का महीना आ गया, मरियम रोजे के चांद का महीना आ गया। मुराद लेते हैं कि रजब का महीना आ गया, मरियम रोजे का चांद है, इसकी भी कोई असल नहीं है। ये खुराफात कहां से आई मैं राज बता रहा हूं। इंशाअल्लाह सुन्नत पर चलेंगे, सुन्नत पर मरेंगे, मरते मरते सुन्नत को अपनाएंगे, जीते जीते सुन्नत को अपनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बिदअत कहां से आई, ये खुराफात कहां से आई, इस पर मैं पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बहुत ध्यान से आप लोग सुन ले, ध्यान से सुनिए। एक आदमी बड़ा नेक था, शैतान आया, कहा कि देखो तुम मशहूर होना चाहते हो, जो तुम्हारे बाप दादा ने किया वही करोगे, तुम मशहूर नहीं हो सकोगे, तुम्हारी कदर नहीं होगी। दीन में नई नई चीज पैदा करो, तुमको इज्जत भी मिलेगी और तुम मशहूर भी हो जाओ। इस तरह नई खुराफात समाज में आई। इंशाअल्लाह अपनी ज़बान को लगाम देंगे और ख्याल को दुरुस्त करेंगे, और जो उलमा का तरीका है, सहाबा का तरीका है, नबी का तरीका, उसी पर चलेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिदअत को दांत से, सुन्नत को हाथ से पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए यहाँ फंस कुरान को बनाकर, कुरान को बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, कुरान को बाजी जय तावील बना के, चाहे तो खुद ताज़ा शरीयत कर ईजाद, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं रात का ढेर है। बड़ा खूबसूरत मुताला तेजी से निकल गया, आपने दिल से सुन लिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, दिन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको भला माल फरमाए। दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, बहुत कम वक्त में लेकर के आ रहा हूँ, और अगर से आपने सुन लिया, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाएगा। सफर करते हैं आप, घर से बाहर निकलते हैं, किस दिन निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए। जुमेरात के दिन सफर करना चाहिए, ये नबी की सुन्नत है। जुमा का दिन है, सफर करना चाहते हैं, अजान हो गई, अब नमाज से पहले सफर करना हराम है। दिन में निकलना चाहिए या रात में निकलना चाहिए? रात में अगर सफर करते हैं तो जमीन लपेट दी जाती है। हदीस में आता है कि रात में सफर करो, जल्दी से सफर तय होगा, जमीन लपेट दी जाती है। सफर के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं, आपको मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती है। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। जब आदमी सफर में होता है, दुआ करता है, तो वो दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती।
آدمی سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، کتنے دن کے سفر کرنے پر پوری نماز پڑھے گا؟ کتنے دن کے سفر، کتنے کلومیٹر چلنے پر مسافر ہوگا؟ 77 کلومیٹر کا سفر ہے تو آپ مسافر ہو۔